Okay, good morning students. Today I'm going to ask you a few questions. You have to answer it on your chat box or you can unmute yourself. So, which shape has zero length, breadth, height, volume and area? Unmute yourself and answer. Sir, point has no shape, no depth, no Okay, height and volume. very good. Now mute yourself. Point has no shape, length, breadth, height and volume. My next question is, which shape is formed after matching 2 points? Sir, line. Very good. Line is a shape which has 2 points, which is made after matching 2 points. My next question is, which shape is formed when 3 close lines connect with each other? Unmute yourself and answer. Triangle. Yes, very good. Now mute yourself. Triangle is formed after connecting 3 lines. So students, today we will study about triangles. As you can see, there is a book in this picture. Now tell me, how many sides does this book have? Unmute yourself and answer. How many sides does this book have? 4 sides. Yes, very good. Now mute yourself. Now, how many vertices are there in this book? Poonam, unmute yourself and answer. How many vertices are there in this book? Samraghi? 4. Very good. No, 4. It's 4. There are 4 vertices in this book. Now mute yourself. On the basis of side and vertices, we can define triangle. In geometry, a triangle is a 3-sided polygon that consists of 3 edges and 3 vertices. ट्रायंगल आपका एक पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एजेस होती हैं और 3 वर्टिसेस होती हैं. The most important property of a triangle is that sum of the internal angles of a triangle is equal to 180 degree. सबसे important property जो triangle की होती है वो होती है कि triangles की जो sum of angles होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का होते हैं. जितने भी angles होते हैं उसके वो आपके 180 डिग्री के होते हैं. This property is called angle sum property of triangle. इस property को क्या कहते हैं हम? Angle sum property of a triangle कहते हैं. If ABC is a triangle, then it is denoted as triangle ABC, where A, B, C are vertices of the triangle. A is a triangle in 2-dimension shape and Euclidean geometry, which is seen as the 3 non-collinear point in a unique plane. कहने का मतलब है कि एक मान लीजिए ट्रायंगल है कोई भी आपका ABC, जिसको हमने ट्रायंगल किससे डिनोट करते हैं? ट्रायंगल ABC. ये जो आपको छोटा सा ए के बगल में आपको शेप दिख रहा है वो हम ट्रायंगल ऐसे डिनोट करते हैं किसी भी ट्रायंगल को. वेयर ABC आर वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, जहाँ पर ABC आपके वर्टिसेस है ट्रायंगल की. जो ट्रायंगल एक्चुअली होता है, ट्रायंगल आपका 2 डायमेंशन होता है बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 डायमेंशन, दैट इज एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन. देयर इज़ नो 3 डायमेंशन. अगर हम 3 डायमेंशन ले लेंगे तो फिर वो आपका ट्रायंगल नहीं कोई और शेप बन जाएगा. और आपके यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करें, जो के 3 पॉइंट्स होंगे वो आपकी नॉन कोलिनियर होंगे. नॉन कोलिनियर का सेंस कि वो सारे एक जगह पर कोइंसाइड नहीं करेंगे, वो सारे डिफरेंट प्लेन पे होंगे. Now shape of a triangle. Triangle is a closed 2-dimension shape. It is 3-sided polygon. All the sides are made up of straight lines. The point where 2 straight lines join is the vertex. जहाँ पर 2 straight line join होती हैं उसको हम vertex कहते हैं. All जो sides होती हैं वो क्या कहते हैं? आपकी straight line होती हैं. Hence the triangle has 3 vertices. जिसकी वजह से कह सकते हैं हम कि जो triangle होता है उसके 3 vertices होते हैं and each vertex forms an angle. और जो आपका each vertex है वो क्या फॉर्म करता है? एक आपका एंगल करता है. जब भी 2 लाइन आपस में मैच करती हैं तो आपका वर्टेक्स बनता है, और जो 2 लाइन जो मैच करती हैं उनके बीच का जो एरिया होता है, जो भी मतलब उनके बीच का जो बेंडिंग होती है, उसको हम उसका एंगल कहते हैं. एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल.
देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल। कॉमन सी बात है, जब उसकी 3 साइड्स होंगी तो उसमें 3 एंगल्स होंगे। दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय 2 साइडेड ऑफ द ट्राइंगल। जो उनके एंगल्स होते हैं वो आपके 2 साइडेड होंगे, विच मीट्स एट अ कॉमन पॉइंट नोन एज वर्टेक्स। जो आपस में आके कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। जो 3 एंगल होते हैं उसके आपके ट्राइंगल के, उनके जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब जो उस जो क्लोज फिगर है ट्राइंगल का उसके अंदर जो सम जो एंगल्स लाई करेंगे वो आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो उनका जो अगर हम सम करें, सपोज तीनों एंगल्स का सम करें तो हमारा कितना आएगा, 180 आएगा। इफ़ एक्सटेंड दी साइड लेंथ आउटवर्ड देन इट फॉर्म एन एक्सटीरियर एंगल। अगर हम बाहर जाते हैं, उसके जो क्लोज फिगर के बाहर जाते हैं, उसकी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो जो उस तरफ से जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर और इंटीरियर का जो सम होगा वो भी आपका 180 डिग्री ही होगा। द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री सेंस मतलब दोनों को अगर हम सम करते हैं तो कितना आएगा आपका, 180 आएगा। सप्लीमेंट्री यहाँ पर आपका 180 डिग्री को शो कर रहा है। Let us say angle 1, angle 2 and angle 3 are interior angle of a triangle. ठीक है, when we extend the sides of a triangle in the outward direction, then the 3 exterior angle formed are angle 4, 5 and 6 which are consecutive to angle 1, 2 and 3 respectively. मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम एक ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं उसको एक्सटेंड करते हैं तो हमको सबके क्या मिलेंगे, एक कॉन्जिक्यूटिव उसके एक्सटीरियर एंगल मिलेंगे। सपोज 1 के लिए कॉन्जिक्यूटिव मिल गया 4, 2 के लिए मिल गया हमको 5 और आपका 3 के लिए क्या मिल गया, हमको 6 मिल गया। तो ये आपके हो गए। और ये जो आपका 1 और 4 का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। 3 और 6 का जो सम होगा वो भी आपका 180 डिग्री होगा। और जो 2 और 5 का सम होगा वो भी आपका 180 डिग्री ही होगा। अब हम देख लेते हैं वर्टिसेस क्या होते हैं। देर से हम लोग वर्टिसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्चुअली वर्टिसेस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कहाँ पर होते हैं। वर्टिसेस देख रहे हैं जो भी आपके एजेस हैं, जहाँ पर आपके जो 2 पॉइंट्स आके मिल रहे हैं आपकी लाइंस के, वो आपके वर्टेक्स हैं। और जो आपकी जो लाइन है ये आपके एक्चुअली हम लोग ये 2D क्या कहते हैं आपका इमेज है, इसलिए मैं आपको ऐसे एज को ऐसे मैं डिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको सिंपली एज ऐसे दिखा दिया। वरना अगर ये 3D होता मैं आपको क्लियरली बताता है कि एजेस कैसे होते हैं। जैसे आपने पिरामिड देखा होगा, तो उसमें पिरामिड में जो जब 2 साइड से आपस में होती हैं, मतलब कॉन्सिक्यूटिव साइड्स होती हैं, तो उसके बीच का जो वो बनता है वो आपका एज होता है। तो आपका एज 1 2 3 0 और वर्टेक्स 0 1 2 ये आपके हो गए वर्टेक्स और एजेस। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। काउंट द कलर। ले आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको मैं। कितने कलर्स हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। 12. 3 3 6 3 9 3 12. Very good. Mute yourself. There are 12 colors in the given picture. Now tell me how many colors are there in our national flag. Unmute yourself and answer. How many colors are 4 there? colors. Okay, answer. Name of the colors. Orange, Okay. white, Okay. green, Blue. And blue color is of the chakra. chakra. Very good. Now mute yourself. There are actually वेल नोन 3 कलर्स होते हैं, बट अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली बात करें, डीप बात करें, तो हमारे नेशनल फ्लैग में 4 कलर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड एंगल्स वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बाई साइड की बात करें और बाई एंगल की बात करें, बाई एंगल के हिसाब से भी हमारे 3 ट्राइंगल्स होते हैं, डिवाइड होते हैं। और बाई साइड्स के हिसाब से भी, बाई एंगल के और बाई साइड्स के हिसाब से भी हमारे 3 ट्राइंगल हम डिवाइड कर सकते हैं। बाई साइड्स के हिसाब से बात करें अगर हम, तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और स्केलिन ट्राइंगल है। ठीक है। और आपके बाई एंगल की बात करें हम तो एक्यूट ट्राइंगल होते हैं और राइट एंगल होते हैं और आपके ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी नाम बता रहा हूँ, आगे मैं इनको अच्छी तरह से आपको इलस्ट्रेट करूँगा इनके बारे में 1 बाय 1 कि एक्चुअली ये होते क्या हैं, सो दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड और बाय एंगल। बाय साइड में भी हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है और बाय एंगल में भी हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल और बाय एंगल में एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज।
Now definition of equilateral triangle. A triangle with 3 congruent sides and 3 congruent interior angles is our equilateral triangle. ये हमारी definition है equilateral triangle की. मतलब बोला गया है कि वो triangle जिसकी equilateral, आप उसका अगर नाम देखें तो ये किससे मिलके बना, equi means equal. तो वो ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल्स होती हैं और क्या कहते हैं उसके जो जब साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो कॉमन सी बात है उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा दे शुड बी इक्वल. तो फिर कह सकते हैं उनकी जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो सारी आपकी कॉन्ग्रुएंट का मीन सेम इक्वल, और आपके जो 3 इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट का मीन्स इक्वल. तो सपोज अपने आप ये पूछेंगे सर ये 60 60 60 क्यों लिखा है. अब मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो 180 डिग्री होता है. और अगर आपको तीनों एंगल इक्वल हैं और आपको तीनों एंगल को इक्वली डिवाइड करना है लेकिन उनका सम 180 आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 180 करेंगे, x प्लस x इज इक्वल टू 180 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा. 3x इज इक्वल टू 180, उधर आप जब 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा तो x इज इक्वल टू 180/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा. तो आपका जो ईच एंगल हो गया वो कितना हो गया, आपका 60 डिग्री आ गया. और ये आपका जो x डिफाइन किया गया है, एक्चुअली हमने कोई इसको नाम नहीं दिया ऐसा लाइन को, तो हमने x नाम दे दिया. तो x का मतलब है कि जो आपकी तीनों साइड्स हैं वो भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब इक्वल हैं. ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. All 3 sides are equal as I defined you earlier. All 3 angles are equal. मैंने बता चुका हूँ आपको. All 3 lines are symmetry. Symmetry means same. तो उनकी सेम सिमिट्री होती है. The altitude, median, angular bisector and the perpendicular lines are same shown in AE. अब आप पूछेंगे एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंड द परपेंडिकुलर मीन्स जो 90 डिग्री फॉर्म करती है, जो आपकी बेस से जो आपकी ये जो भी आपकी 90 डिग्री फॉर्म कर रही है लाइन वो आपकी परपेंडिकुलर है. सपोज अगर हम AE की बात करें तो वो वाली लाइन जो आपको एक बॉक्स सा बन रहा है वो आपको 90 डिग्री शो कर रहा है, बेसिकली आपका E बनाएगा आपका परपेंडिकुलर. और अगर हम बात करें एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या है आपका, AOE आपका क्या है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल है. ठीक है, तो ये आपकी बात होगी उसकी. और द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड आर द सेम एज शोज एज. ऑर्थो सेंटर मीन्स द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल और सेंट्रॉइड मीन्स वो भी सेंटर ही होता है. तो वो दोनों आपके क्या है, सेंटर O से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर. ये आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. चलिए अब नेक्स्ट ट्रायंगल के तरफ पढ़ते हैं हम. अब आपका ट्रायंगल आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. दैट अ ट्रायंगल विद 2 congruent sides and congruent base angles is called आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल. वो ट्रायंगल जिसकी 2 congruent साइड होती हैं, कहने का मतलब है कि वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं आमने सामने की, वो आपके क्या कहते हैं, क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं. सॉरी, वो आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं. और जो उनके बेस एंगल, बेस का मतलब सपोज जो आपका नीचे का है दिख रहा है ये आपका बेस है, तो बेस एंगल इसके जो होते हैं वो जो आमने सामने के बेस एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं. तो और उनकी जो आमने सामने की साइड्स होंगी, जब एंगल्स इक्वल होंगे आमने सामने के तो कॉमन सी बात है उनकी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए बाय द रूल ऑफ कॉन्करेंसी. तो क्या कहते हैं आपका दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी और आपके दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. ये क्या होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन होगी. ठीक है, सबसे पहले हमने इक्विलेटरल पढ़ा, उसमें क्या था, हमारी तीनों साइड्स इक्वल थी. अब हमने आइसोसेलेस पढ़ा जिसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल थी. तो अब हमारा लास्ट जो बचा वो कौन सा बचा, स्केलीन ट्रायंगल. स्केलीन ट्रायंगल क्या होते हैं कि वो साइड्स जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, अनइक्वल हों, वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्केलीन ट्रायंगल कहलाएंगे. जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, अनइक्वल हों, वो हमारे स्केलीन ट्रायंगल कहलाएंगे. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ है कि आपके जो स्केलिन ट्रायंगल्स होते हैं, जो हमने आपको अभी तीनों ट्रायंगल डिफाइन किए हैं, इनको अगर हम एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर तो इक्वली सबका निकलेगा, बट अगर हमको एरिया निकालना है तो सबके लिए हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं एरिया निकालने के लिए. तो वो भी हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे उसके बारे में. नाउ हम लोग जल्दी से वो जो आपके 3 एंगल जो हम लोगों ने डिवाइड किए थे एंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, तो ट्रायंगल जो हमने डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स वो जल्दी पढ़ लेते हैं. वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मेन जल्दी एक ही स्लाइड में पढ़ डालते हैं उनको.
तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, वो तीनों थे हमारे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट मतलब जो 90 डिग्री से कम हो वो हमारे होते हैं एक्यूट एंगल। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो आपके 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? वो एंगल जो क्या कहते हैं जिसके आपके क्या कहते हैं जो एंगल है आपका एक एंगल जो हो आपका ऑब्ट्यूज का सेंस कि 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री हो, वो आपका एक आपका ट्रायंगल जो हो मोर देन 90 डिग्री हो वो आपका कराएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और आपके दोनों एंगल 90 से कम हो वो डजेंट मैटर, बट आपका एक एंगल जरूर आपका 90 डिग्री अबव 90 डिग्री होना चाहिए बट बिलो 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जो आपके 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो वो आपके होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? आपके वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री का हो वो आपका कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट इसलिए इसको बोला गया क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट होगा तो मतलब वो अगर बेस के साथ वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा तो वो आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जिसका जो आपका एक एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री होगा, लेकिन उसका इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ याद रखिएगा कि उनके एंगल्स की तो बात हो रही है लेकिन उनके सम ऑफ एंगल्स जो होगा वो हमेशा 180 ही रहेगा। ये नहीं कि अगर आप ट्यूस आप ले रहे हैं तो आपका जो सम ऑफ एंगल्स हो जाए 180 क्रॉस कर जाए तीनों का, तो उस हिसाब से आपके दोनों एंगल्स भी आपके डिफर करेंगे, ठीक है। एक्यूट ले रहे हैं तो ये नहीं कि आपका 180 से कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपके जो दोनों और भी एंगल्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे एक्यूट हो, एक्ट्यूस हो और राइट हो, बट द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। Now students, I will ask you some question. The student who knows the answer will message me on chat box or unmute yourself. What is triangle? Unmute yourself and answer. Any student? Preeti, can you answer? Triangle is a polygon having 3 sides and 3 vertices Yes. and 3 angles. Very good. Now mute yourself. A triangle is a polygon having 3 sides, 3 angles and 3 vertices. Very good. Now mute yourself. The triangle is a three-sided polygon that consists of 3 sides and 3 vertices. Okay. Now next question is, what are the types of triangle on the basis of their sides? साइड्स के अगर बेसिस पे बात करें तो ट्रायंगल्स कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं? एंड नेम देम। एनी स्टूडेंट? ओके, कोई बात नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। हमारा सबसे पहले अगर ओके, very good. Now mute yourself. There are 3 types of triangle on the basis of sides: equilateral, isosceles, and the third one is scalene triangle. My next question is types of triangle on the basis of their angle. एंगल के बेसिस पे कितने हमारे ट्रायंगल्स हैं और कौन कौन से हैं? Very good. And the third one is right angle triangle, acute angle triangle, obtuse angle triangle. well, try Preeti. Now mute yourself. Try type. Obtuse angle triangle. Yes. Very good. Now mute yourself. Types of triangle on the basis of angle. First is acute angle triangle,